آپ لوگوں کی اس طرح ساتھ دینے کی جو بات ہے انشاءاللہ بلا تاخیر میں حضرت کو عریض خطاب پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی رہے سرکار برکان آباد حضرت مولانا سید شاہ کریم اللہ حسینی مندہ آبادی صاحب المعروف کاشف پاشا صاحب اللہ مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے تمام سامعین کے دلوں کو محفوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ قرآن اکیڈمی کا آئے گا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز ومکرم برادر ذی وقار حضرت مولانا سید مدثر معیز پاشا قادری الحیدری الجیلانی لاؤبالی صاحب مدد اللہ العالی، برادر گرامی قدر شہزادہ حضور غوث اعظم ترجمان قادریت حضرت علامہ سید محمد رضوان پاشا قادری الحیدری الجیلانی لاؤبالی مدد اللہ العالی و دیگر حضرات و افراد خانوادہ جیلانیہ حیدریہ لاؤبالیہ، ثنا خانان محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد. خوشا چشم گو بنی گرد مصطفیٰ را، خوشا دل کے دارد خانقاہیں کہ دروے بود قیل و خال محمد. زِ صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. رخ والضحیٰ زلف واللیل آنکھ ما زاغ البصر. رخ والضحیٰ زلف واللیل آنکھ ما زاغ البصر. تیری ہر ہر ادا پر آیت قرآن اتری ہے. حضرات گرامی، انسان جب دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، اور محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے تو اس پر اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک انسان ہے، ایک دکان پہ جائے کچھ سامان لے اور وہ کہے کہ میرے پاس چینج نہیں ہے، 10 روپے کم پڑیں، تو انسان کہے گا میں 10 روپے تمہارے واسطے کیوں چھوڑ کر جاؤں. 5 روپے بھی ہو تو کوئی کسی کے لیے چھوڑنے
तैयार नहीं होता, लेकिन किसी से मोहब्बत हो जाए, दोस्त से मोहब्बत हो जाए, घर वालों से मोहब्बत हो, उनके ऊपर 5,000 भी कुर्बान करना आसान हो जाता है, 10,000 भी कुर्बान करना आसान हो जाता है। तो मोहब्बत जब होती है तो अपनी महबूब शय कुर्बान करना आसान होता है, और जब मोहब्बत नहीं होती है तो अपनी कोई भी चीज इंसान किसी को भी नहीं दिया करता। इसी तरह इंसानों की जो फितरत है, ये फितरतें, ये अल्लाह ताला की आदत शरीफा पर इंसानों की फितरत है कि अल्लाह ताला ने भी यही किया कि जब मोहब्बत फरमाई है तो अपना जो कुछ है अपने महबूब का कर दिया है। अल्लाह ताला ने जब मोहब्बत फरमाई है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सारी जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे हवाले कर दी है। अल्लाह बता रहा है कि जब महबूब से मोहब्बत हो जाती है तो मुहिब का जो कुछ होता है वो सब कुछ महबूब का हो जाता है। मुहिब का जो कुछ होता है वो महबूब का हो जाता है, क्योंकि मुहिब और महबूब में मेरा तेरा नहीं होता, मुहिब का सब कुछ महबूब का होता है। अब महबूब का हुआ तो कितने वक्त के लिए हुआ है? सवाल ये पैदा होता है कि कितने वक्त के लिए हुआ है। महबूब को मुहिब ने दे दिया। अगर कोई आदमी किसी को कर्ज देता है तो कर्ज देने वाला किस नीयत से कर्ज देता है कि ये पैसा मैं दूंगा तो मुझे वापस आएगा, यही नीयत से देता ना। लेकिन कोई तोहफा दे तो वापस आने की नीयत से नहीं देता। हाँ, ये और बात है, उन्होंने अपने बच्चे की शादी में 500 रुपए रखे थे, अपन 500 एक भी नहीं रखते उनके बच्चे की शादी में। सही है नहीं है? उन्होंने 500 रखे तो अपन भी 500, उन्होंने 250 रखे तो अपन 300 भी नहीं रखते। क्यों? कि बराबरी का मामला तोहफे में आजकल चल रहा है, जबकि ये मुनासिब नहीं है। हमें सामने वाले की जरूरत को देखना चाहिए, इसी को हुस्न सुलूक कहा जाता है। और दूसरी तरफ जब कर्ज दिया जाता है तो पहले से नियत होती है कि मैं जो दे रहा हूं ये मुझे वापस कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी, हम मामूली इंसान होकर अपनी तरफ से दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लेते तो परवरदिगार आलम अपने महबूब को दी हुई चीज कैसे वापस ले सकता है? जब सरकार ने फरमाया जमीन के सारे खजानों की कुंजियां अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, तो अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफा दे दिया। अब जमीन के खजानों की कुंजियां कल भी मुस्तफा के पास थी, आज भी मुस्तफा के पास है। रब्बे काबा की क़यामत की सुबह तक मुस्तफा के पास रहेगी। हजरात गिरामी, मेरे सरकार को अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां देकर ये बता दिया कि खालिक़े कायनात ने अपने महबूब को मालिके कायनात बना दिया है। खालिक़े कायनात ने अपने महबूब को कायनात का मालिक व मुख्तार बना दिया है। अपने महबूब को हर एतबार से बेमिसाल पैदा फरमाया, अपने महबूब को मुमताज भी बनाया है, अपने महबूब को मुख्तार भी बनाया है। बेशुमार इम्तियाजात भी अता फरमाए, बेशुमार इख्तियारात भी अता फरमाए हैं। अब आप गौर कीजिए, बेमिसाल बनाया तो इस तरह बेमिसाल बनाया। आशिक कहता है तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसा बेमिसाल बनाया कि महबूब की समाअत बेमिसाल, महबूब की बसारत बेमिसाल, महबूब की नबुव्वत बेमिसाल, महबूब की रिसालत बेमिसाल। महबूब जिस मक्के में पैदा हुए वो मक्का बेमिसाल, जिस मदीने में आराम फरमा है वो मदीना बेमिसाल, जिस गार में कयाम फरमाए वो गार बेमिसाल, बल्कि महबूब के अहले बैत बेमिसाल, महबूब की असल बेमिसाल, महबूब की नस्ल बेमिसाल, महबूब के सहाबा बेमिसाल। महबूब का फैजान मिले तो सिद्दीक अकबर की सदाकत बेमिसाल, फारूक आजम की अदालत बेमिसाल, उस्मान गनी की सकावत बेमिसाल, हैदर कर्रार की शुजाअत बेमिसाल, हसन मुजतबा की इमामत बेमिसाल, शहीद करबला की शहादत बेमिसाल, अबू हनीफा की फुकाहत बेमिसाल,
مثال، غوث اعظم کی ولایت بے مثال، غریب نواز کی حکومت بے مثال۔ اللہ بتا رہا ہے صرف میرا محبوب بے مثال نہیں، جو محبوب کے دربار سے جڑ جائے کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ رب کائنات میں اس کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی جو مصطفیٰ سے جڑ جائے، کیونکہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس سے جڑی ہوئی ہر شے سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبت ایسی فرمائی کہ زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں تو محبوب کو عطا فرما دی، لیکن محبت یوں بھی فرمائی کہ نہ صرف زمین و آسمان پہ اختیار عطا فرمایا بلکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور کو اللہ نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا۔ اب دوسرے لوگ کہتے ہیں، دوسرے ناموں سے نہیں پکاروں گا، وہ نام تھوڑی دیر کے بعد سننے ہیں آپ لوگوں کو، اور ہنسی بچا کے رکھیے، بہت ہنسنا ہے ابھی آگے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ دوسرے نام میں نہیں کہوں گا، لیکن دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کو اختیار ہوگا دوسرے معاملات میں، لیکن شریعت بدلنے میں اختیار نہیں ہے، نماز اور روزہ بدلنے میں اختیار نہیں ہے، سرکار کو شریعت میں اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ مصطفیٰ کو زمین و آسمان پر بھی اختیار ہے، مصطفیٰ کو شریعت میں بھی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی فرض کو معاف نہیں کر سکتا، کسی حکم کو کسی کے اوپر معاف نہیں کر سکتا، کوئی مفتی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، مجتہد ہو، مجدد ہو، کسی حکم کو معاف نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ تمام جانتے ہیں کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، طلاق کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے، اور انتقال کی عدت 4 مہینے 10 دن تک ہوتی ہے۔ اب 4 مہینے 10 دن ساری دنیا کی عورتوں کی عدت ہے۔ سیدنا جعفر کے گھر حضور تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ سے حضرت اسماء بنت عمیر سے ارشاد فرمایا کہ اسماء، ساری دنیا کی عورتوں کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن میں تیرے لیے عدت کو معاف کر رہا ہوں، 3 دن تک تیری عدت ہوگی، اس کے بعد تیرا اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے حکم آیا ہے، سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے عدت معاف کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے مصطفیٰ کو شریعت بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ ارے یہاں تو حضور ارشاد جلوہ فرما ہے اور صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے سکوت اختیار فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، سرکار نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں سے کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اگر حکم آ جاتا، بلکہ حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض کر دیا جاتا۔ میرے سرکار کی یہ شان ہے کہ جو حضور کی زبان سے نکل جائے وہی شریعت ہو جاتا ہے، وہی دین ہو جاتا ہے۔ دنیا پوچھے صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا گیا، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت کہیں گے مصطفیٰ کے قدموں کے نشان کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ وہ جس طرح چلتے ہیں وہ صراط مستقیم قائم ہوتی چلی جاتی ہے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ دین ہو جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ، وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے،
कब चल रहे थे? 100 ऊंटों की लालच में चले थे। ये तो कुफार परेशान थे। हम तो समझ रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफा हैं, हम तो समझ रहे थे कि कायनात के नबियों का सरदार है, लेकिन कपड़ा हटाया तो कायनात के वलियों का सरदार नजर आया। हम तो समझ रहे थे मुस्तफा है, चादर हटी तो हैदरे कर्रार नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हुक्म फरमाया, महबूब चले हैं, यहां तक के पीछे आ गए और ये 100 ऊंट की लालच में आए हैं। सरकार के करीब हुजूर ने अपने हाथ उठाए, जमीन के अंदर उनके घोड़े के पैर गए। हजरत सराका गिरे, उठ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह माफ फरमा दीजिए, मैं आपसे माफी चाहता हूं, माफ फरमा दीजिए। हुजूर ने माफ फरमा दिया। ख्याल आया कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेत होती है उसमें पैर जानवरों के कभी धंस जाते हैं, हो सकता है ऐसे कुछ हो गया हो। फिर से उठे उसी इरादे से, फिर से घोड़े के पैर जमीन में धंसे, फिर से माफी मांगी। मेरे सरकार ने दोबारा माफ फरमाया तो उन्होंने कहा, आप मुझे एक अमन नामा लिख कर दे दीजिए, क्योंकि मैं समझ गया जमीन पर जिसका ये इख्तियार हो, कल वो एक दिन आएगा कि वो जात मक्के में फाते बनकर दाखिल होगी और कोई उनको रोक नहीं सकेगा। जमीन पे आपको वो इख्तियार अता फरमाया गया। मेरे सरकार ने अमन नामा लिख के दिया। उसके बाद इरशाद फरमाया कि सराका वो दिन क्या होगा जब तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। सरकार को आप देखें, दुश्मन जान लेने आया है और सरकार अता फरमा रहे हैं। किसी कानून की पाबंद नहीं देन उनकी, वो को खताओं पे अता करते हैं और ये सरकार की शान है। यही सरकार के शहजादों की भी शान है। इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा रख पे गिरा, आपने तेज निगाह से देखा, उस बांदी ने कुरान पाक की आयत पढ़ के कहा, वल काज़िमीन अल गैज़, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं। आपने निगाहें नीचे फरमा ली। उसने कहा, वल आफीना अनिन नास, वो लोग जो लोगों को माफ करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। करने वालों को पसंद फरमाता है। इमाम ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। यहाँ दुश्मन आया था, सरकार ने न सिर्फ माफ किया कि हुजूर ने अता भी फरमाया, उसी तरह शहजादे ने भी शान जाहिर फरमाई है। क्योंकि ये हसन और हुसैन कौन है? रुए जमीन पर विरासत अहमद मुख्तार के मालिक का नाम हसन मुज्तबा शहीद करबला है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सरकार को ये शान अता फरमाई, हुजूर ने माफ फरमा दिया। फिर उसके बाद एक जमाना आया, मक्का फतह हुआ, आयत भी नाजिल हो गई, हुक्म भी आ गया कि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। सही में पक्का? शादी के दिन भी हराम है। नौशा को नहीं, एक दिन को हलाल कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। शादी के दिन भी हराम है, मंजरों के दिन भी हराम है, वलीमे के दिन भी हराम है, मैयत के दिन भी हराम है। जो एक बार हराम है वो पूरी जिंदगी में हराम है, जो एक बार हलाल है वो पूरी जिंदगी में हलाल है। कोई किसी हलाल को हराम नहीं कर सकता। नौशा पहन के बैठे रहते शादी के दिन, सोने की अंगूठी, आदमी सोना पहना हुआ है हराम, नमाज भी पढ़ रहा है तो इस पहनने की अंगूठी नहीं दे सके लोग। ये हमारा माशरा है, ये हमारा माहौल है। नौजवानों अहद करो, सोना पहन के नहीं बैठेंगे शादी के दिन। जरा हाथ उठा के बोलो, जिनकी शादी नहीं हुई उन्होंने हाथ उठा के बोलो। हो गई सवाले उठाएंगे परेशान। अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के नालैन के सदक़े इत्तिबाए शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे सरकार ने फरमाया, तुझे सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। सरकार के बाद सरकार सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का जमाना आया, उनके बाद सरकार फारूक आजम की खिलाफत का जमाना आया। और जब कैसर और किसरा के खजाने मस्जिद नबवी में मुसलमानों की ठोकरों में लाकर डाले गए हैं, मेरे सरकार के वो
खलीफा हजरत सरकार फारूक आजम भी जज्बा फरमा है, सहाबा भी जमा है, तमाम मर्द ठहरे हैं, किसी के लिए सोना हलाल नहीं है। और सरकार फारूक आजम ने फरमाया सराका को बुलाओ, वो कहाँ है? वो हाजिर हुए, फरमाया क्या तुम्हें याद है हुजूर ने तुमसे कहा था तुम्हारे हाथों में किस तरह के कंगन पहनाए जाएंगे? उन्होंने कहा मुझे बहुत खूब याद है। इरशाद पर यह नहीं फरमाया कि उसके बाद तो हुक्म आ गया है कि मर्दों पर सोना हराम है, लिहाजा हुजूर ने जब कहा था अब तुम्हें नहीं पहनाया जाएगा, बल्कि फारूक आजम ने फरमाया मेरे सरकार ने तुम्हें पहनाने का हुक्म दिया था, हाथ आगे बढ़ाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें सोने के कंगन पहनाऊं ताकि दुनिया को पता चले यह फकत आमिना के लाल की शान है, जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जिसके लिए जो चाहे हराम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये इख्तियार शरीयत में अता फरमाया। ऐसी हजारों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं। यहाँ तो एक दो हुक्म बदलने की बात हो रही है, यहाँ तो अपनी तरफ से एक दो अहकामात बदलने की बात हो रही है। वहाँ परवरदिगार फरमा रहा है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। एक दो हुक्म की बात नहीं है, महबूब बदलना चाहते हैं पलट के क़िबला बदल दीजिए, आप जहाँ पलट जाएंगे क़यामत तक के मोमिनीन का क़िबला बना दिया जाएगा। नमाज की हालत में सरकार पलट गए और सरकार के जानिसार भी पलट गए, सिद्दीक अकबर भी पलट रहे हैं, फारूक आजम भी पलट रहे हैं, उस्मान गनी भी पलट रहे हैं, अली मुर्तजा भी पलट रहे हैं और कायनात को बता रहे हैं जिसकी तरफ हम पलट रहे हैं वो काबा है, को देख के पलट रहे हैं वो काबे का काबा है। ये तो अकायद सहाबा के थे, ये तो अकीदे मुस्तफ़ा कायनात के सहाबा के हैं। लेकिन अल्लाह आगे क्या इरशाद फरमाता है, हमने क़िबला नमाज में बदलने का हुक्म इसलिए फरमाया ताकि पहचाने कि कौन ये कहता है कि नबी पलट गए हम भी पलट जाएंगे, और कौन पीछे हट जाता है कि नबी अचानक कैसे पलट सकते हैं। उस वक्त जो इख्तियार का इनकार कर रहा था उसने कहा नबी ऐसे नहीं पलट सकते, लेकिन जो इख्तियार का मानने वाला था वो सोच रहा था मुस्तफ़ा जो कर देते हैं वही शरीयत हो जाता है। और हमारे लिए भी यही हुक्म है, सिद्दीक फारूक उस्मान और हैदर के गुलाम मुस्तफ़ा के इख्तियार के कायल हैं, और जो अब्दुल्ला बिन उबई का गुलाम हो वो मुस्तफ़ा के इख्तियार का कायल नहीं होगा। अब हमें तय करना है हम किस मैदान में खड़े हैं, खड़े रहने वाले हैं। हज़रात अल्लाह ताला ने जब ऐसी मोहब्बत फरमाई, आप गौर फरमाइए सरकार के सहाबा ने कैसी मोहब्बत फरमाई है। सहाबे किराम ने मोहब्बत की वो मिसाल पेश की है, सुबह क़यामत तक कोई तबका पैदा नहीं हो सकता सरकार के सहाबा की तरह जिन्होंने ऐसी मोहब्बत की मिसालें पेश फरमाई हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर इरशाद फरमाया जिसके पास जो है वो लेकर आए। तमाम सहाबे किराम हस्बे हैसियत लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। एक सहाबिया हाजिर हुई, ख़वातीन इस्लाम ख़ास तौर से इस वाक़े को सुने। एक सहाबिया हाजिर हुई, कहने लगी या रसूल अल्लाह ये दूध पीता बच्चा आपकी खिदमत में पेश है। सरकार ने इरशाद फरमाया मैंने सामान कहा था ये बच्चा किस लिए लाई हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने फरमाया जिसके पास जो है वो लेकर आए, मेरे पास इस बच्चे के सिवा कुछ नहीं था, मैं यही लेकर हाजिर हो गई। सरकार ने फरमाया ये बच्चा जंग में क्या काम आएगा? उस सहाबिया ने जो जवाब दिया है वो क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले दावेदारान इश्क़ रसूल के लिए दलील बन गया है। उस सहाबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे सदक़े, सरकार मैं चाहती हूं कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करे तो आप इस बच्चे को ढाल बना लीजिए, क्या के तीर और तलवार के निशान इसके जिस्म पर आए। मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूं कि मेरे बेटे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन आपके जिस्म मुकद्दस पे खराज भी आ जाए मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे कुछ मतलब नहीं क्या इश्क का अंजाम है, तुम पे सदक़े हो के मर जाना हमारा काम है। ये सहाबे किराम का तरीक़ा था। यहाँ पे सरकार फरमाए नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर की आंखों की ठंडक के वास्ते फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद नहीं कुर्बान कर रहा, इन्हें बच्चे कुर्बान करता नहीं, हिमाकत है नहीं है।
10 मिनट की नींद नहीं कुर्बान कर सका, ये क्या औलाद कुर्बान करेगा? 10 मिनट का कारोबार नहीं रोक सका नमाज के लिए, ये क्या अपने खानदानों को कुर्बान करेगा? हजरात सहाबे किराम ने वो नमूना पेश किया है सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हजरत इजाजत है कुछ देर? हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जरा इस्तकबाल फरमा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सरकार के सहाबे किराम ने वो मोहब्बत की है कि अगर बज़ाहिर उनको तकलीफ होती नजर आती किसी फैसले से, तब भी वो फिरते नहीं थे। उनके अकीदे कमजोर नहीं होते थे, बल्कि और ज्यादा उसमें ताकत पैदा हो जाती थी। हमारे पास क्या है, एक बात सुन लिए, दो बात सुन लिए, फिर एक शरीयत का हुक्म ऐसा है जो हम अमल करें तो दिल को तकलीफ होती, छोड़ दे के बोलते इसके बगैर शरीयत नहीं है क्या, इसके बगैर दीन नहीं है क्या। हजरत अबुल बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलह हुदैबिया के मौके पर मायदा हुआ कि अगर कोई मुसलमान मक्के से भाग के मदीने की तरफ आ जाए तो वापस कर दिया जाएगा, उसको मदीने वाले रखेंगे नहीं, और काफिर अगर कोई मदीने की तरफ आए तो छोड़ दिया जाएगा, और कोई मुसलमान मक्के की तरफ चला जाए तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मायदा हो गया, सरकार ने कबूल फरमा लिया। हजरत अबुल बसीर को भाइयों ने, बाप ने कैद करके रखा था। कैद के बाद में बड़ी मुश्किल से बच बचा कर निकले, मदीने पाक की तरफ दौड़े। इरशाद फरमाते हैं रास्ते में कुछ देर ऐसी थी कि मैंने किसी के साथ ऊंट पे सफर किया, बाकी सारा सफर पैदल चलते हुए हजरत अबुल बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक पहुंचे। सहाबा फरमाते हैं हमें देखकर हैरानी हो रही थी और शिद्दत की तकलीफ हो रही थी कि जिस रास्ते से अबुल बसीर गुजरते थे उस रास्ते पे खून फैला हुआ नजर आता था। इसी हाल में वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। मस्जिद नबवी में आमिना का लाल जलवा फरमा है। हजरत अबुल बसीर सामने आके खड़े हुए, सरकार ने देखा, सरकार की आंखों में आंसू जारी है, उन सहाबा की उनकी भी आंखों में आंसू जारी है। यहां तक के मक्के से पकड़ने वाले भी आ गए हैं और सरकार से कहने लगे आपने मायदा किया है कोई मोमिन मक्के से मदीना आ जाए वापस कर दिया जाएगा, अब आप वादा पूरा करेंगे या इसको अपने पास रखेंगे? सरकार ने अपने चश्माने मुबारक हुजूर के नम है, हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैंने कहा था वापस भेजूंगा, वापस कर रहा हूं। सहाबा फरमाते हैं उनको वो लोग लेके जा रहे थे, वो पलट पलट के सरकार की तरफ देखते और रोते जाते और सरकार की आंखों से आंसू जाते। यहां तक के मदीने पाक से हजरत अबुल बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु जब बाहर निकले हैं, उन लोगों से कहा हुजूर ने फरमाया था मदीने से वापस भेजूंगा, अब हम मदीने के बाहर आ गए हैं। उन लोगों ने कहा देखो तुम तो जिनके ऊपर ईमान ले आए हो उन्होंने तो तुम्हें घर में रखने भी, अपने पास रखने के इरादा भी जाहिर नहीं किया और तुम उनके ऊपर मर मिटने की बात कर रहे हो, अब भी आ जाओ अपने बाप दादा के दीन की तरफ। हजरत अबुल बसीर ने यह नहीं कहा हाँ मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने इरशाद फरमाया तुम क्या समझ सकते हो, मेरा ईमान तो आज और ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि रुए जमीन पे मेरे सरकार से ज्यादा वादे की पाबंदी करने वाला पैदा नहीं हुआ है। मेरे सरकार ने वादे की पाबंदी फरमाई, मुझे वापस कर दिया, लेकिन अब मदीने से हम बाहर निकल गए हैं, अब आओ तुम में अगर दम है तो मेरे करीब आओ। वो एक से तलवार खींची, एक को कत्ल किया, दूसरा दौड़ा, यहां तक के मक्के से जो बचकर आते थे वो यहीं पे, अब आप मदीने में भी नहीं गए क्योंकि वापस कर दिए जाएंगे, मक्के में भी नहीं गए क्योंकि पकड़ लिए जाएंगे, सजा दिए जाएंगे, तो एक दो करके ये जहां खड़े हो गए जिस घाटी में 300 सहाबा का मजमा वहां जमा हो गया। अब यहां तक के कोई काफिर का उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। मक्के वालों ने कहा हुजूर से आप बुलाइए अबुल बसीर को, हमें बहुत परेशान कर रहा है, मदीने में बुला कर रख लीजिए। अब आप गौर फरमाइए, हजरत अबुल बसीर फरमाते हैं दिन भर जमीन पे रहता, रात होती पहाड़ की
चोटी पे चढ़ता, मदीने पाक की तरफ रुख करके पलट जाता और ये बस ये इंतजार करता, या रसूल अल्लाह गुलाम को याद फरमा लीजिए, या रसूल अल्लाह गुलाम को बुला लीजिए। सिर्फ अबुल बसीर की ख्वाहिश नहीं है, यहाँ जितने आशिक बैठे हैं इन सब की भी यही ख्वाहिश है, या रसूल अल्लाह गुलामों को याद फरमा लीजिए। अल्लाह करे कि हम सबको मदीने पाक की हाजिरी बार बार नसीब हो जाए। हजरत हजरत अबुल बसीर को हुजूर ने कासिद भेज के फरमाया एक दिन आएगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। बीमार हुए, लोगों ने कहा शायद मौत आ जाएगी, कहने लगे जब तक हुजूर का कासिद ना आए मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती। हुजूर ने फरमाया बुलाऊंगा तो जब तक कासिद ना पहुंचे मैं मरूंगा नहीं। आखिरी हिचकियां हैं, आखिरी सांसें हैं, हुजूर की तरफ से कासिद आए, कहने लगे अबुल बसीर तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। अबुल बसीर उस हालत में उठ के खड़े हुए, अपने हाथों को उठाया, लोगों से कहा देखो मेरे सरकार ने गुलाम को याद किया है। जुबान से निकला या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, और यहाँ रूह परवास कर गई। यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहने वाले ने कहा था नज़ा की हिचकियों में भी सदाए मुस्तफा निकले, मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए। सहाबा ने वो मोहब्बत फरमाई है सरकार कायनात से, और क़यामत तक की इंसानियत के लिए दलील बना दी है मोहब्बत को। लेकिन आप गौर कीजिए, जब मोहब्बत होती है तो सिले भी बड़े दिए जाते हैं। सिला भी ऐसा दिया गया रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। इस तरह के मैदान महशर में सरकार के सहाबा आएंगे, इस हाल में आएंगे, वो सब अल्लाह से राजी होंगे, अल्लाह उन सब से राजी होगा। ये सिला मोहब्बत रसूल का है। अब आप देखिए जब सरकार ने मोहब्बत का सिला दिया है, सरकार के शहजादे भी मोहब्बत का सिला देना जानते हैं। हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं मुझे अपने पीरों में किसी पीर की मजार से अगर मैंने जाके फैज लिया है तो हजरत मारूफ करखी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मारूफ करखी क्या इरशाद फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ रहता था सरकार इमाम मूसा रज़ा की चौखट पर, अली के लाल के आस्थाने पर बैठा रहता, दिन रात बस वहाँ लोगों की जूतियाँ सीधा करता। कभी देखता कोई आ रहा है पानी पे चल के चला गया, कोई हवा में उड़ के चला गया, कोई कुछ मकाम पा गया, मैं तो कोई मकाम पा नहीं सका। 12 साल वहीं पे गुजर गए। इरशाद फरमाते हैं 12 साल जब इसी हाल में गुजरे, ख्याल हुआ सबको मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला। 1-2 दिन का तोशा अपने साथ लिया और लेके निकल गया इमाम मूसा रज़ा की चौखट से। फरमाते हैं जब तोशा खत्म हो गया और भूख की शिद्दत बढ़ने लगी, 2-4 दिन गुजर गए। अब सोच रहा हूं कि कोई नजर आए तो खाने पीने के लिए कुछ मांग लूं। इरशाद फरमाते हैं काफिला मुझे नजर आया, मैंने उस काफिले को देखा, देख के उस काफिले वालों से करीब ही था कि कुछ मांगता। उन काफिले वालों ने कहा नमाज असर का वक्त है, नमाज पढ़ लेंगे। वो नमाज के लिए खड़े हुए, मैंने सोचा नमाज के बाद मांग लूंगा। नमाज के बाद वो सारा काफिला जो था उसके इमाम ने पलट के कहा आप सब तो जानते हैं हम में से किसी के भी पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये मुसीबत ज़दा को आफत ज़दा का सलाम हो गया। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह पहले परेशान, वो पूरा का पूरा काफिला परेशान। इरशाद फरमाते हैं उन लोगों ने कहा कि दुआ करते हैं, और दुआ क्या कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हम भूखे प्यासे हैं, हमें रिज़्क़ अता फरमा। तुझे इमाम मूसा रज़ा की चौखट के दरबार मारूफ करखी का वास्ता है, हमें रिज़्क़ अता फरमा। इरशाद फरमाते हैं जंगली बिल्लियां अपने हाथों में रोटियां लेकर आई है, एक एक करके सामने रखी गई। लोगों ने कहा तुम भी खा लो, भूखे मालूम होते हो। खाना सब कुछ छोड़ा, मूसा रज़ा की खट पे दौड़े और जाके बैठ गए अपनी जगह पे। बताया कि अली के बेटों की जब कोई गुलामी कर लेता है उसका नाम भी मुश्किल कुशा हो जाता है। जब अली के बच्चों की कोई गुलामी करता है उसका नाम भी मुश्किल कुशा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ अली मुश्किल कुशा नहीं, सारे
तमाम खल्क के हाजत रवा हुए, मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए। रब्बे करीम ने ये शान है दर करार के खानवादे को अता फरमाई। इश्क़ रसूल में मसलक अहले सुन्नत वल जमात में अपने आप को मजबूत रखें। इस मसलक के हवाले से कभी भी किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज हरगिज न करें। इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल, इत्तिबाए सुन्नत रसूल और मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत गौसो ख्वाजा को जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, अल्लाह ताला ने उनके खानदानों को सलामत रखा है। और जिस आस्थाने में हम जमा हैं, ये गौसे आजम का ऐसा लाल है। आप गौर फरमाइए, तशरीफ लाए शहर करनूल में तो सबसे पहले जो करामत जाहिर हुई है वो बादशाह की मुर्दा बेटी को जिंदा करके सुल्तानुल फुकरा सैयदुल अब्दाल सरकार अब्दुल लतीफ लाहौबाली ने लोगों को बताया है। ये गौसे आजम का ऐसी शान वाला शहजादा है कि करनूल आते ही अपने दादा की करामत का ज़ुहूर अपने हाथों से करके दिखाया है। अल्लाह तबारक व ताला इन आस्थानों किरान को जारी रखे। मोहब्बत रसूल और आले रसूल में हम तमाम को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या इलाही। दुआज़मन गर्दत कबूल अस्तुफैले पंजतन बहरे गौसे आजम व ख्वाजे ख्वाजगाने ज़मन अस्तुफैले बंदा नवाज सुल्तान और ख्वाजे दकन चू नाम मोहम्मद आबुरदा शुद बंदा नवाजे हर बंदा सुल्तान दकन शुद पाइंदा ऐ जाने रसूल अमी मददे ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين।